Students, so today we are going to start with the topic of standard 10 science 1, that is refraction of light. Now you all have heard reflection of light. What was reflection of light? It was something sending back of something, or the image which you see in the shiny objects like mirror or your vessels, okay, steel vessels जो होते हैं, और on water. That is called as reflection, जो हमको डिट्टो वैसा ही दिखता है, ठीक है. But what is refraction here now? Refraction is when the light changes its direction from going on to one transparent medium to another. What it is? Refraction of light is light when light travels from one transparent medium to another transparent medium. It changes its direction. What it does? It changes its direction. Okay, what is reflection of light? When light rays, okay, when light rays travel from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction. Now what does this mean? Now see, transparent medium, for example, there can be air is everywhere, but we can see through it. That means air is what? Transparent in nature. Then next, what it is? Water can be transparent in nature. The plain glass can be transparent in nature. Okay, there are many examples of things which are transparent. Okay, so when light will travel from these transparent mediums, okay, और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे, मतलब एयर से समझो वाटर में या वाटर से समझो ग्लास में, ऐसे कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में अगर वो ट्रैवल करेगा, then the light will change its direction. What it will do? It will change its direction. Now understand this. Suppose there is a glass slab. Okay, glass का piece है, ठीक है, PQRS is a glass slab. Okay, and there is one light ray coming like this. Okay, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एयर, और यहाँ पे क्या है? ग्लास, ठीक है, दिस इज अ ग्लास. ओके, सो व्हाट इट इज? अ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर एंड नाउ इट इज इन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर. तो क्या होगा? अभी एक्चुअली में उसको ऐसे ही ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है. अगर वो स्ट्रेट है, लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ रे, तो वो स्ट्रेट ही आनी चाहिए ना, ऐसे कहीं से भी. लेकिन क्या हो रहा है? Air is one transparent medium and glass is another transparent medium. And what is refraction of light? Light will change its direction from one transparent medium to another. When it will travel from one transparent medium to another, it is going to change its direction. So how it is possible? See, वो actually में तो ऐसे आना चाहिए. We will draw one normal. Normal, you all know, normal is something what? Perpendicular. हम लोग किसी चीज़ से perpendicular बनाते हैं, that is called as what? Normal. ठीक है, तो वो ऐसे जाना चाहिए लाइट को स्ट्रेट, बट वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन द डायरेक्शन. थोड़ी टेढ़ी हो गई ना लाइन, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन द डायरेक्शन. दिस वाज इंसिडेंट रे. व्हाट दिस वाज? इंसिडेंट रे. As soon as the light struck and it travels in the glass, it got refracted. वो अपने डायरेक्शन से क्या हो गया? चेंज हो गया. And that this ray is known as what? Refracted ray, not reflected, huh? It is refracted ray. And if you write reflected ray, it will be totally wrong. Okay, so please mind that in this chapter we always deal with refraction or refracted ray, not reflection or reflected ray. Okay, similarly अगर हम लोग, ठीक है, अब ये जो रे है वो अगर ऐसे जाएगी, ठीक है, ग्लास स्लैब से वो ऐसे आई, वी विल ड्रॉ वन नॉर्मल हियर. नाउ अगेन इट शुड ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन. ओके, ऐसे डायरेक्शन में उसको ट्रैवल करना चाहिए.
लेकिन अगेन इट विल चेंज इट्स पार्ट एंड इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, नाउ दिस वाज व्हाट इंसिडेंट रे फ्रॉम गोइंग टू ग्लास स्लैब से एयर में. अब पहले क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, कहाँ से आई, एयर से. एयर से आई तो क्या हुआ, ग्लास के सरफेस को टच किया और वो थोड़ी टेढ़ी हो गई. ओके, अब वो लाइट फिर से ग्लास स्लैब से किधर जाएगी, एयर में जाएगी. यहाँ पे वापस क्या है, एयर है. सो नाउ द रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम एन इंसिडेंट रे फ्रॉम गोइंग टू ग्लास फ्रॉम एयर. ठीक है, ग्लास से एयर में जाने के लिए अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो इंसिडेंट रे बन जाएगी. नाउ उसको ऐसे ट्रैवल करना चाहिए स्ट्रेट एक्चुअली में, बट वो कैसे ट्रैवल करेगी, ऐसे ट्रैवल करेगी. एंड दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे अगेन. Okay, understood how refraction of light takes place? When it travels from one transparent medium to another, it will change its direction. Actually में उसको ऐसे ही travel करना चाहिए था, but due to refraction of light, what will happen? वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा. And again, जब ग्लास से एयर में जाएगा फिर वो टेढ़ा हो जाएगा. जितनी बार भी वो अपना मीडियम चेंज करेगा, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, again and again it will have to change its direction. And this phenomena of light, of changing direction from one transparent medium to another, is nothing but refraction of light. Okay, now as you all studied reflection of light, there were some rules, okay, or laws. Similarly in refracted ray also there are some laws. So let us study that. Okay, what are we going to study now? Laws of refraction. Okay, so again we will draw one glass slab, incident ray coming. Okay, we will draw one normal and the refracted ray will bend somewhat like this. Okay, so this is normal, n dash, this is refracted ray, this is incident ray, this is the medium air, this is glass. Okay, so what is happening, light is coming, okay, glass पे touch हो रहा है, then again it is getting reflected and it is changing the direction. Now what does the law means? First law क्या बोल रहा है, the incident ray and the refracted ray, the incident ray and the refracted ray will be on the opposite side or opposite direction of normal. ठीक है, incident ray and refracted ray will always be on the opposite direction or opposite side of the normal. दिख रहा है, incident ray यहाँ से आ रही है और normal का जो angle है वो यहाँ से बन रहा है. This is above, this is below, also it is left and right. तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा, it will become totally opposite. Incident ray is coming like this, refracted ray will be like this. Okay, so first law states that दोनों भी जो rays है वो normal के opposite direction में ही होने चाहिए, and then only it will be called as what, incident ray and refracted ray. Okay, so this was the first law, very simple. ये reflection में भी था हम लोग का कि incident ray and reflected ray should be on the opposite side of the normal. Same in the laws of refraction also. The incident ray and the refracted ray should be on the opposite side of the normal. Okay, going on to the next part, the angle made by the incident ray with normal is what, I, and the angle made by the refracted ray with the normal is what, R. रिफ्लेक्शन में क्या था, दोनों भी सेम होते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट नाउ इन दिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर is some constant. Okay, it is what, constant. Okay, this is the
law, second law of reflection. What it says that sin I upon sin R, ठीक है, sign of angle of incidence and sign of angle of reflection is what? Constant. It will always be constant. उसमें क्या था? सेम था, बट यहाँ पर सेम नहीं होंगे. दोनों के साइन का रेशियो जब हम लोग लेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ओके, रिमेंबर दैट. सो दिस वर द टू लॉज ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन. नाउ ट्रांसपेरेंट मीडियम पे तो रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा ही. ओके, बट व्हाट विल हैपन नाउ व्हेन द रिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर या रेयर से डेंसर, या फिर सी व्हाट विल हैपन when light travels from denser to rarer and from rarer to denser. Okay, air is the medium which is rarer, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और ग्लास एक सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी. रिमेंबर, कोई भी अगर गैस है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो दोनों के बीच की होती है. ओके, नाउ एयर इज इन गैस फॉर्म, तो उसका जो डेंसिटी है वो बहुत लेस होगा, एंड दैट इट इज कॉल्ड एज रेयर. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेयर मीडियम. इट हैज़ वेरी लेस डेंसिटी, बट ग्लास हैज व्हाट? हाई डेंसिटी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डेंसर मीडियम. ओके, सो व्हाट विल हैपन? फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल. अगर इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिख रहा है? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, एंड दिस इज नॉर्मल. दिख रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. बट व्हेन नाउ दिस इज ग्लास, दिस इज योर डेंसर मीडियम. ओके, दिस वॉज फॉर रेयर. जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. बट व्हेन इट विल मूव फ्रॉम, व्हेन लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. नाउ दिस इज डेंसर, एयर क्या हो जाएगी? रेयर मीडियम हो जाएगी. So when again we will draw one normal. This is now incident ray coming from the glass, and this will be my reflected ray. Okay, so it is not traveling the same part, but it is away from the normal. Wait. Okay, this will be my incident ray, and this will be my refracted ray. So when incident ray is traveling from denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. दिख रहा है? नॉर्मल से दूर जा रहा है और ये नॉर्मल के पास आ रहा है. So it will move away from normal. What it will do? It will move away from normal. When air will pass from denser medium to rarer medium, it is going to move away from the normal, and when it is going to travel from rarer medium to denser medium, it is going to move towards the normal. Okay, ये कब होता है? जब लाइन टेढ़ी आ रही है, जब लाइट क्या हो रहा है? कोई एंगल में पास हो रही है. अगर सपोज लाइट स्ट्रेट पास हो रही है, ओके, तो नॉर्मल भी यही बनेगा और रिफ्रैक्शन रे भी यही आएगा. ओके, दिस इज व्हेन light is going to travel perpendicular. When it will going to travel perpendicular to the glass slab, then
देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो क्या होगा, जैसा इंसिडेंट रे है वही डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा. ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड? देन ओनली इट विल व्हाट हैपन, जो भी है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम होगा. अब वो कैसे सेम होगा, अब एंगल देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अगर वो कांस्टेंट सपोज 1 है, ओके, दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अगर ये कांस्टेंट 1 है तो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल. एंड व्हेन इट विल बी इक्वल, व्हेन द एंगल्स विल बी सेम. ओके, तो एंगल सेम होगा मतलब साइन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है. ओके, तो साइन 90 भी 1 होता है, दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो सकता है, या दोनों के अगर एंगल सेम है तो भी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? व्हेन इट इज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर तो साइन कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज व्हाट, 1. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है ग्लास स्लैब से तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम एज द इंसिडेंट रे. ओके, सो दिस वाज व्हेन डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर परपेंडिकुलर है तो देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन. ओके, सो अप टिल नाउ व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर, व्हाट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, हमने पढ़ा कैसे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. Then we understood what the laws of refraction. क्या होते हैं laws of refraction? Then we understood how the reflection of light takes place when it goes from denser medium to rarer medium और rarer medium to denser medium, या अगर वो perpendicular travel करेगा तो reflected ray में क्या changes आएंगे. ठीक है, denser to rarer travel करेगा तो क्या होगा, it will move to away from the normal. rarer से denser करेगा तो it will move towards the normal. And when it will be perpendicular there will be no change in the direction of refracted ray. ठीक है, ये सब तो हम लोग ने पढ़ा, लेकिन what is the use, how we can make the use of this refraction. Now there is another term called as refractive index. What it is called as, refractive index. Now how will you define this? It is nothing but velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. ठीक है, अब लाइट जैसे मैंने बोला एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी. ओके, सो ऑल्सो इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी, डायरेक्शन तो चेंज होता ही है लाइट का व्हेन इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. ऑल्सो देर इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड भी चेंज हो जाती है लाइट की. ओके, सो व्हाट हैपेंस ना, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं. वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कि वो लाइट कितनी स्पीड में वो सब्सटेंस में पास हो रही है. ठीक है, अब वो अकेले सब्सटेंस की हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है और कहाँ से कब जाने वाली है. ठीक है, 3 फेजेस होंगे उसके, फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, सेकेंड टू थर्ड. तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड जब जा रही है उन दोनों का रेशियोज लेंगे, एंड देन वी विल कम टू नो द सेकेंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. ओके, द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज न्यू. ओके, दिस इज कॉल्ड एज न्यू, थोड़ा सा कर्वी एन होता है. It is called as refractive index of medium 2 with respect to 1, and this is called as refractive index of 1 with respect to 2. तो कैसे लिखेंगे इसको, ये होता है refractive index. ठीक है, this is the symbol of refractive index of medium 2. तो हम लोग लिखेंगे velocity of light in medium 2 upon velocity of light in medium 1. Okay, similarly इसका कैसे लिखेंगे, I will just write it down. Velocity
of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. Also it will be written as velocity of light with respect velocity of light in medium 2 with respect to 1, velocity of light in medium 1 with respect to 2. ठीक है, इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है. सो वी वेरी केयरफुल व्हाट इज द सिंबल आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो वाटर नीचे आएगा. इसके भी रिस्पेक्टिव पूछा है, दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर, और जिसका पूछा है दैट विल कम इन द न्यूमरेटर. रिमेंबर दैट. And here whatever is in right hand side will be on the numerator and whatever is on the left hand side will be on the denominator. Same, this will be the numerator, this will be the denominator. Also अगर question में with respect to पूछा है, that means it should be what? In the denominator. It should be in the denominator. Also कभी कभी क्या होता है, question में खाली पूछते directly velocity of light in water, velocity of light in this, velocity of light in that. सो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज कांस्टेंट. वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो कभी कभी दो मीडियम नहीं देंगे, वो लोग डायरेक्टली पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास. तो हमको याद रखना है इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, and that value is what? 3 × 10⁸ meter per second. Okay, this is the velocity of light in air. So this you have to remember. कभी कभी दो mediums नहीं देंगे, directly किसी एक का refractive index पूछा, तो what you will write in the denominator? You will write velocity of light in air and the value which is you should know, that is 3 × 10⁸ meter per second. Okay. Now this we understood about refractive index. Now refraction of light is such a wonderful phenomena. Because of that we see many wonderful things in our nature. Okay, we see very interesting and wonderful things in our nature. Now you have all observed twinkling of stars. Twinkling of stars. Okay, what is twinkling of stars? ऐसा लगता है कि stars जलबुझ हो रहे हैं ना, ऐसे लाइट ऑन ऑफ हो रही है उनकी. अब वहाँ पे कोई बैठा तो है नहीं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए. ठीक है, तो ये क्यों होता है? ओके, लाइट सोर्स है. व्हाट वी स्टडीड, स्टार्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, अब कोई चीज़ सोर्स ऑफ लाइट है तो वहाँ पे कोई है नहीं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो ऐसे क्यों लगता है कि लाइट बंद चालू हो रही है स्टार्स की, एंड उसकी वजह से हमको क्या लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, स्टार्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली अपनी लाइट सोर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं. एंड वी आर ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ से लेके स्टार के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे और स्टार्स के बीच में वो बहुत वेरी करता है. अलग अलग जगह पे अलग अलग एयर होगी, अलग अलग टाइप की एयर होगी. कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. एवरीथिंग कैन हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा. उस वजह से क्या होगा, लाइट का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही जब वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर जाएगा. ठीक है, क्या होता है ना कि अगर एयर में थोड़ा सा भी फर्क है, दैट मीन्स वो लाइट के लिए एक डिफरेंट मीडियम हो जाएगा. As soon as it will find that it is a different medium, it will change its direction. तो लाइट ने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो डायरेक्ट स्पीड अपनी चेंज की, और वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. तो कंटिन्यूसली व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ स्टार विल कम टूवर्ड्स अस ना, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. वो कभी स्पीड में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी ऐसे होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या लगता है कि स्टार्स में कभी लाइट है कभी नहीं है, बट स्टार्स में लाइट हमेशा से ही होती है, बट वो हम तक ट्रैवल कंटिन्यूसली नहीं कर पाती है. ठीक है, कभी कभी स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की तो वो हमारे पास आएगी, कभी नहीं होगी तो नहीं आएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमको उसका लाइट नज़र नहीं आएगा. एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
which is one of the phenomena of light. What it is? One of the phenomena of light. And it is very interesting ना, कितना अच्छा लगता है हम लोग को stars twinkle होते हुए देखना. और वो किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि लाइट फ्रॉम स्टार्स टू अर्थ विल कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स वेलोसिटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें कभी कभी लगता है कि स्टार्स में सोर्स है और कभी कभी लगता है कि स्टार्स में सोर्स नहीं है. ओके